Hello students, I am Alok Tiwari from Law Education, and today we will do scope of Indian Contracts Act. What is meant by scope? Scope means its applicability. Applicability of anything is called its scope. So it also includes the territory in which this particular act is applicable. It also includes the other acts where its applicability is not questionable, and it also counts whether it is applicable in foreign contract matters also. So there are other issues also related to this particular aspect. So now we start with scope of Indian Contract Act 1872. Number 1, it extend to whole of India and came into force from first day of September 1872. Earlier it was not applicable in Jammu and Kashmir, but after 2020 now it is applicable in Jammu and Kashmir also. Now very first point is that the Contract Act does not profess to be complete code. It has already been studied that it is not a complete code, it is not exhaustive code. There are so many other contract codes also, but it is only, its limitation is that whatever is given in it, it is complete in totality for that aspect only. So the Contract Act does not profess to be a complete code dealing with the law relating to the contracts. That means there are other contractual acts also. It is not an exhaustive act as understood from the following points. Exhaustive नहीं है, इसको कैसे पता किया जाए? The preamble जो इसका है, it appears from its preamble the act purports to do no more than define and amend certain parts of that law. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सर्टेन पार्ट्स को ही डिफाइन और अमेंड करने के पर्पज से बना है. इसका मतलब ये खुद एडमिट करता है प्रेम्बल में कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ जो पर्टेन करता है कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर डील किया जाएगा. तो एग्जॉस्टिव नहीं है. सेकंड क्या है? इनेक्टमेंट रिपील्ड क्लॉज जो है ऑफ सेक्शन 1 एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ अदर स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स एंड यूसेस ऑफ ट्रेड एंड इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट. यानी कि दूसरे जो एक्ट्स बने हैं उनको भी ये किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है. उसमें जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो एज इट इज़ माने जाएंगे क्योंकि वो उस एस्पेक्ट के लिए बने हैं. तो अगर पार्टनरशिप एक्ट बना है, अगर इंश्योरेंस एक्ट बना है, अगर कंपनी एक्ट बना है या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना है, तो वो जो एक्ट्स हैं उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इसके द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होंगी. ये क्लैरिटी के साथ है. तो ये एक पॉइंट कहते हैं कि कोई कस्टम एंड यूसेज हैं अगर, वो भी इस एक्ट के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे. लेकिन कस्टम से जब ट्रेड यूसेस की बात करते हैं तो ट्रेड यूसेस में सिर्फ वो ट्रेड यूसेस जो कि पर्टिकुलर हैं और जो एविडेंस के थ्रू प्रूव किए जा चुके हैं, सिर्फ वही यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी ले सकते हैं इन कंट्राडिक्शन टू दिस पर्टिकुलर एक्ट. अदर जनरल ट्रेड यूसेस जहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे और उसके ऊपर ये हमेशा उसको ओवरकम करेगा. अब होता है ट्रेड यूसेस कौन कौन से होते हैं. आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में जैसे जनरल लेन होता है. इफ़ ए पर्सन हैज़ टेकन सर्टेन लोन एंड अगेंस्ट विच some surety is deposited with the bank, and if that person default in some other loan, the bank has lien over that particular surety which is deposited by this person for some other loan where he has not defaulted. That means it doesn't matter where that person has made default, whether in one loan or in the other loan. In either of the loan, if it pertains to the same bank, then bank can use that particular surety as a defense, just to safeguard its own interest. So that is something which is in trade use. If it is not in the written form, even then it will be acceptable. Then in agriculture commodities and moisture allowance, say in case of agricultural, जो जितने भी हमारे खेती के जो हमारे पौधे होते हैं या खेती से जो प्रोडक्शन आता है उसमें मॉइस्चर होता है. और अगर आज कोई चीज़ 100 किलो है तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे को मॉइस्चर उसका सूख जाए और वो 98 kg रह जाए. तो ऐसे केस में कोई डिस्प्यूट नहीं बन सकता जब तक कि 0.5% तक वो जो डिफरेंस इन वेट है वो वहाँ पर आ रहा है. अगर 0.5% ज़्यादा तो शायद
इसको डिस्प्यूट में ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ ये ट्रेड इश्यूज़ है कि जो भी इस तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें मॉइस्चर होता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मॉइस्चर ड्राई होता है तो उससे उसका वज़न कम हो जाता है। देन डायमंड एंड जेम स्टोन इंडस्ट्री। डायमंड एंड जेम स्टोन इंडस्ट्री का भी यही है कि हैंडशेक से और किसी जस्ट एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख दिया कि इतना अमाउंट हमें लेना है देना है, या वर्बल एश्योरेंस के बेसिस पर वहाँ पर डील्स होती हैं, तो ऐसे केस में ये ट्रेड यूसेस का पार्ट माना जाता है। और उसी में ट्रेड यूसेस का पार्ट है कि आपके हाथ में डायमंड है, इसका मतलब ये नहीं कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं मानी जाती है। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्रेडिट विंडो। इंडस्ट्री में 30 दिन की क्रेडिट विंडो रहती है। जैसे कि कोई माल सप्लाई किया गया किसी को, तो वो इमीडिएटली उसको पैसे देगा ऐसा नहीं है, लेकिन 30 दिन के बाद भी अगर नहीं देता है तब फिर वो इंटरेस्ट क्लॉज और दूसरी क्लॉज शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इमीडिएटली अपन सप्लाई ऑफ दिस मटेरियल पेमेंट हैज़ टू बी मेड थ्रू बैंकिंग सिस्टम, देन दिस रूल विल नॉट कम into rescue, because it is categorically agreed between two parties, then immediately after supply or delivery of the goods payment will be made. So these are certain trade uses which are in use. They likewise so many other trade uses also depending upon in which industry you are dealing in. So that means these trade uses sometimes overcome this particular act because it is established thing, which if someone say that today I have delivered the material and after 2 days he just file a case that he is not made payment, that means this losses, I should get the compensation. The court will say no, 30 days window is there for credit. So it is something trade uses. So whatever Contract Act says that what is decided between two parties will have to be honored. But if it is not in writing, then in that case the 30 days period will come rescue for the person to whom the material was delivered. तो अब इसके बाद है कि टू द एक्सटेंट दैट दिस एक्ट डील्स विद ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इट इज़ एग्जॉस्टिव। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरह से लेसर सब्जेक्ट लेसर एक्ट है। जिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इसने कम्प्लीटली उसमें कवर किया हुआ है। उसको रेमेडी भी दी है, उसके कंसेप्ट भी समझाएं, डिफ़ॉल्ट के केस में क्या होगा और डिले है तो उस केस में क्या होगा और किस तरह की डैमेजेस इसमें मिल सकती हैं, वो सारे प्रोविजंस इसमें एक्ट में दिए हैं। तो उस पर्पज़ से अपने आप में कंप्लीट एक्ट है। दैट मीन दिस एक्ट इज़ नॉट रिलाइंग अपॉन सम अदर एक्ट टू गेट रेक्टिफिकेशन और गेट रिलीफ और गेट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस आस्पेक्ट. It is complete, its definition part is complete, everything which it is handled in entirety, that it is not depending upon some other act. Then it is not permissible to import the principle of English law independent of the statutory provisions contained in this act as was declared. इंग्लिश लॉ को आप यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। अगर कोई स्टेचुटरी प्रोविज़न इसमें है तब तो ठीक है, अगर कोई स्टेचुटरी प्रोविज़न नहीं है इस एक्ट में तो उसको बाईपास करके किसी इंग्लिश लॉ को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बंगूर का एंड कंपनी, ये जो पर्टिकुलर केस 1954 का है, इस वाले केस में इन्होंने कहा था कि इंग्लिश लॉ को आप यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो दिया है उसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन एक दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वाज रिलेटेड टू कि ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं होने के बाद में अपने आप में एंटायरिटी रखता है या कंप्लीटनेस रखता है। दूसरे लॉ को हम यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेड यूसेस और जो दूसरे एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, उनको ये अफेक्ट नहीं करता है। वो अपनी तरह से काम करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और ट्रेड यूसेस क्या होते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में बताएं। अब एक आता है कि हाउ फॉर नेटिव लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ स्टिल इन फोर्स। नेटिव लॉ होते हैं, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो किसी एरिया विशेष में उस तरह के लॉ चल रहे होते हैं जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके बीच में, तो वो लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल थे। तो जब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या वो लॉ आज भी एग्जिस्ट करेंगे। देखिए, जिस पर्टिकुलर मैटर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है वहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को पावर है कि वो अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन का यूज़ करके वहाँ पर उस जो भी वहाँ का नेटिव लॉ है उसको वहाँ पर इम्पोज करें किसी पर्टिकुलर केस में।
डिपेंडिंग अपॉन कि वो पर्टिकुलर लॉ किस हद तक, वो जो पर्टिकुलर नेटिव लॉ है वो किस हद तक प्रिविलेंस में है, कितनी उसकी आज की डेट में सैंक्टिटी है। जैसे कि पर्टिकुलर केस में, इसी को पहले कर लेते हैं। सिंस दिस एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, केसेस मे ऑकर which are not covered by the Contract Act or by any special enactment relating to contracts. In such case, the High Courts in exercise of their original jurisdiction are bound to apply the Hindu law of contract to Hindus and the Mohammedan law of contract on Muslims. Though such cases are very rare. यहाँ पर रेयर होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। जो हिंदू, अच्छा, हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखिए, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि वो कोर्ट जो कि उसको पहली बार सुन रही है। तो किसी भी मैटर को जब कोई कोर्ट पहली बार सुनती है उसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहलाता है। जैसे क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, उसमें मजिस्ट्रेट सुन रहे हैं तो उनकी वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उनका। हाई कोर्ट डायरेक्ट केसेस नहीं लेती है, जनरली अपील में केसेस वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ मैटर्स के अंदर हाई कोर्ट को फर्स्ट कोर्ट माना गया है कि वहाँ जाके उसको सुना सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी है, जैसे कि अब रिट फाइल करते हैं, रिट जो है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाते हैं एंड 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन है। वहाँ पर जाके फर्स्ट टाइम आप उनको सुना रहे होते हैं, नीचे किसी कोर्ट में उन्होंने सुनाया हुआ नहीं होता इस मैटर को। तो इसे ओरिजिनल जुडिक्शन मानते हुए अगर कोई पर्सन जाता है उनके पास में, तो हाई कोर्ट को ये स्पेशल पावर है कि वो जो नेटिव लॉ है उसकी वो सैंक्टिटी को समझते हुए उसको अलाउ कर सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर केस है कि हिंदू रूल है कि दमदूपत जो है ये एक वर्ड है। दमदूपत से मतलब होता है कि आप किसी एक टाइम में जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके बराबर का आप ब्याज नहीं ले सकते। मतलब आपने 100 रुपये किसी को दिए, 10% इंटरेस्ट के या 20% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हो सकता है पेमेंट ना कर पा रहा हो, तो एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आएगी कि 100 रुपये के बराबर के उसका ब्याज बना, तो 100 रुपये का ब्याज एक बार में आप नहीं ले सकते उससे। ये जो है इस पर्टिकुलर जो रूल को कहते थे दमदूपत। तो ये पर्टिकुलर रूल जो एप्लीकेबल था, रूल ये फोर्स में था कहाँ पर? बॉम्बे में स्टेट में और प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कलकत्ता में। हालांकि मद्रास जो प्रेसिडेंसी टाउन था वहाँ पर नहीं था, ना बाहर किसी एरिया में था। तो ये एक चीज़, ये एक एक्सेप्शन कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रूल जो है दमदूपत का वहाँ पर लागू है और आज भी वहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर ये ज़रूरी नहीं कि दूसरी उस स्टेट्स के बाहर जाके भी एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये कहना होगा कि फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस द नेटिव रूल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन सुपरसीडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेशल इनैक्टमेंट। स्पेशल इनैक्टमेंट से और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो जितने भी लॉ हैं, जितने भी इस तरह के नेटिव लॉज थे, उनको सबको सुपरसीड किया जा चुका है। ये जो दमदूपत है ये एक मतलब एक्सेप्शंस की तरह हम कह सकते हैं। तो इसका रिप्लाई इसी तरह रहेगा कि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत ही रेयर केस है तो उसमें हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुडिक्शन की पावर है कि वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर को किसी को अलाउ कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेविंग ऑफ यूसेज एंड कस्टम्स। चूँकि हम जब S1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो उन्हें सबसे पहला सेक्शन है तो पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि इनैक्टमेंट्स रिपील्ड, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, नॉर एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, नॉर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पर कस्टम एंड ट्रेड यूजेस और कस्टम ऑफ ट्रेड जो है इसको उन्होंने कहा है कि शैल नॉट अफेक्ट, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट प्रोविजंस। जो ट्रेड यूसेस और ट्रेड कस्टम्स हैं उनको कोई भी इसका प्रोविज़न अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट को यहाँ पर अलग से बताने की कोशिश की है कि इससे क्या मतलब निकलता है। देखिए, ट्रेड यूसेस जैसे कि हमने 4 तरह के ट्रेड यूसेस बताए कि 30 डेज़ तक का क्रेडिट का एक नॉर्मली अलाउ किया हुआ है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में उसमें उसका वज़न कम हो सकता है बिकॉज मॉइस्चर रिड्यूस होता है उसमें। तो ऐसे केस के अंदर हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर यूसेस जनरल यूज़ नहीं होना चाहिए। जनरल यूसेस जो कि मतलब लोगों ने अपने किसी भी लेवल पे शुरू कर रखा था, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बाईपास करके कोई नया रूल नहीं बना सकते। लेकिन जो पर्टिकुलर यूसेस होते हैं जो कि बिल्कुल प्रिविलेंट होते हैं और जो पूरी जो कमर्शियल कम्युनिटी है वो उस बात को अडॉप्ट किए हुए हैं, तो किसी एक व्यक्ति के मना करने से वो चीज़ गलत नहीं हो जाएगी, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है एज ए रूल।
तो कह सकते हैं हम कि हेयर द टर्म यूसेज ऑफ ट्रेड, यहाँ जो यूसेज ऑफ ट्रेड है इसको अंडरस्टूड किससे करना है, अंडरस्टूड बाय रेफरिंग एज पर्टिकुलर यूसेज टू बी इस्टेब्लिश बाय एविडेंस, जो कि एविडेंस से इस्टेब्लिश किया जा चुका है पर्टिकुलर यूसेज, उसको तो यहाँ पे अलाउ करेगा। एंड ये प्रेफरेबली डिफरेंट होता है, परफेक्टली डिफरेंट होता है जनरल कस्टम से। किसी मर्चेंट का कोई जनरल कस्टम है, कोई लोकल में 10-20 लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको नहीं माना जाएगा कि हम ये तो मेरे यूसेज में आता था, ये तो मेरे कस्टम्स में आता, नहीं। जो बिल्कुल पर्टिकुलर कस्टम है, जो कि एविडेंस के थ्रू प्रूव किए जा चुके हैं और आज भी चल रहे हैं, प्रिवलेंट है सब जगह पर, तो उनको तो माना जा सकता है। और पर्टिकुलर यूसेज रिमेन अनअफेक्टेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इवन दो इट मे बी इनकन्सिस्टेंट विद दोज प्रोविजंस। एक केस लॉ है इरावदी फ्लोटिला कंपनीज का, भगवान दास 1891 का। इस केस लॉ को आप लोग स्टडी कीजिएगा, इसमें आपको एक प्रोविज़न मिलेगा और कुछ नई चीज़ें भी पढ़ने को मिलेंगी पर्टिकुलर यूसेस के लिए। अब दूसरी बात क्या है, बट ए जनरल यूसेस परवेडिंग ऑल ट्रेड्स हैज़ नो बाइंडिंग फोर्स इफ़ इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अगर वो इनकन्सिस्टेंट हैं, जनरल जो रूल्स होते हैं, जनरल जो कस्टम्स हैं, यूसेस हैं, अगर वो पर्टिकुलर केस है तो उसमें ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो इनकन्सिस्टेंट है विद द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, उसे नहीं माना जाएगा। और ये पर्टिकुलर केस लॉ है मुथोरा कांत शाह वर्सेस इंडियन जनरल स्टीम नेविगेशन कंपनी 1883 का। इस केस में लॉ में इस बात को बताया है कि जो जनरल यूसेज हैं वो अगर इनकन्सिस्टेंट हैं एक्ट के मुकाबले तो उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और स्टिपुलेशन यानी कि कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डालिए, वो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इनकन्सिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। जो इसमें कंडीशन लिखी हैं उन कंडीशन के ही अकॉर्डिंग आपके टर्म्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ये नहीं कह सकते कि हम दो लोगों ने जो हमें मन में आया हमने कर लिया, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अ स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्टिपुलेशन हो that a guarantee that the surety shall not have benefit of section 133। section 133 of contract act अगर हम देखते हैं तो section 133 of contract act कहता है कि है किस चीज़ पर, ये पर्पज़ है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक श्योरिटी ने किसी जगह पर अपनी श्योरिटी दी है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, सी ने श्योरिटी दी है, तो इस प्रोविज़न के अंदर जो क्लॉज जो है, जो सेक्शन 133 है, इसके अंदर सेक्शन 133 है, इसके अंदर उसको राइट है, उसको इस तरह का राइट है कि अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का चेंज करते हैं तो ये श्योरिटी वहाँ जो उसने श्योरिटी दी गई है उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर ये कहा जाए कि श्योरिटी से कि आप जो है वो सेक्शन 133 का बेनिफिट नहीं ले सकते, तो ये जो एक स्पीकिंग टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको ये वायलेट करता है, तो ये परमिसिबल नहीं है। तो कहेंगे स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कोई गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट द श्योरिटी शैल नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 133 हैज़ बीन हेल्ड टू बी इनकन्सिस्टेंट विद एक्ट एज वाज हेल्ड। इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर जिसमें चितगुप्पी एंड कंपनी वर्सेस विनायक काशीनाथ 1921 का केस है, इसमें ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को उठाया गया और कोर्ट ने हेल्ड किया कि आप सेक्शन 133 का वायलेशन करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, किसी को बांध नहीं सकते हैं कि आपको 133 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये उसी तरह से है कि मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की जो इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड्स होती हैं, एब इनिशियो, यानी शुरू से ही वो वॉइड मानी जाती हैं। देन एविडेंस टू यूसेज ऑफ ट्रेड। ये यूसेज ऑफ ट्रेड के एविडेंस से क्या मतलब होता है? सेक्शन 92 सब सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं हम। सेक्शन 92 सब सेक्शन 5 से दैट दो द टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू राइटिंग, ओरल एविडेंस मे बी गिवन ऑफ एनी यूसेज or custom by which incidents not expressly mentioned in the contract are usually annexed to the contract of that description, provided annexing of such incident is not inconsistent with the express condition of the contract।
इसमें कहना है कि मान लीजिए दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें जो एक्सप्रेस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें कोई उस एरिया में कोई यूसेज, कोई ट्रेड यूसेज यूज़ होता है, अगर ओरली भी उस बात को बताया जाता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाएगा। लेकिन तब तक जब तक कि कोई एक्सप्रेस कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में ना हो जो उसके अगेंस्ट हो। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्रेडिट विंडो है ये 30 डेज़ की बताई कि 30 दिन में आप पैसा जमा आप दे दीजिए, डिलीवरी का जो भी पेमेंट है। लेकिन अगर आपकी एक्सप्रेस कंडीशन है कि ऑन अपॉन डिलीवरी इमीडिएटली पेमेंट इज़ टू बी मेड, तब ये पर्टिकुलर जो यूसेज से काम नहीं आएगी। तो यहाँ पर वही कहना है कि एविडेंस एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड कि वो उसको आप काम तब तक ले सकते हैं जब तक कि वो इसके कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है किसी कंडीशन के, और वहाँ पे रिटन फॉर्म में नहीं तो ओरल भी अगर उसे बताया जाए तो उसको एडमिट किया जाएगा और उसको मान लिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पर यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड को रेफ़र किया गया है। हमने निकाला दो सेक्शन, सेक्शन 190 एंड सेक्शन 211। अब आता है सेक्शन 190 क्या कहता है। सेक्शन 190 में किस तरह से यूसेज का यूज़ किया गया है, इस वर्ड का यूज़ किया गया है। व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स which he has expressly or impliedly undertaking to perform personally, unless by the ordinary custom of trade a sub-agent may, or from the nature of agency a sub-agent must be employed. That means ordinary custom of trade, अगर जो custom of trade है उसमें ये अलाउ है कि एक जो एजेंट है वो भी अपना सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ एम्प्लॉयर। तो ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर हम अगर यूज़ करते हैं कि अगर कोई ऐसा यूसेज उस कस्टम हो उस पर्टिकुलर ट्रेड का तो वो कर सकता है, यानी कि हमारा सेक्शन नंबर 190 में इस वर्ड का यूज़ हुआ है। अब 211 के अंदर जो इसका यूज़ हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। एजेंट में क्या, एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल, एजेंट्स ड्यूटी टू कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस। इसमें आप देखेंगे एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल और इन एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कस्टम विच प्रिवेल्स इन डूइंग द बिजनेस। यानी कोई अगर डायरेक्शन नहीं तो कस्टम, तो वो जहाँ भी कस्टम का यूज़ किया गया है। इसका मतलब कि कस्टम और यूसेस का जो यूज़ है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में किया हुआ है और इसलिए कस्टम्स और यूसेस जो ट्रेड के होते हैं वो उसमें अलाउ हैं। ये एक्सप्लिसिटली भी कह सकते हैं, इम्प्लाइडली भी कह सकते हैं, दोनों तरह से इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को मान सकते हैं। सो इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट द एक्सप्रेशन यूसेस और कस्टम ऑफ ट्रेड यूज्ड हेयर और इन सेक्शन 1, चूँकि 190 में भी किया गया, 211 में भी किया गया और सेक्शन 1 में किया है, ये रिलेट्स टू पर्टिकुलर यूसेस। ये किसी पर्टिकुलर यूसेस की बात कर रहा है, जनरल यूसेस की बात नहीं कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर यूसेस है कि अगर आप एजेंट के अंदर सब एजेंट रखना चाहते हैं तो अगर कुछ ट्रेड की रिक्वायरमेंट है, उसमें ऐसा कस्टम चला आ रहा है तो वहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ पर कि पिछले 100 साल से 200 साल से इस तरह का कस्टम है कि उसके अंडर में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रखना है, तो ऐसे केस के अंदर तो अलाउड है, लेकिन जनरल यूसेज इसमें नहीं अलाउड है। इसके बाद आता है दी TPA एक्ट। TPA एक्ट क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसमें भी सेक्शन 4 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट द चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ दैट एक्ट, दैट TPA एक्ट के जो वो सेक्शन वो चैप्टर विच रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहा गया है कि जो TPA एक्ट है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके अंदर जो भी सेक्शंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं उनको ये माना जाए कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हैं, यानी कि उनके साथ इसके साथ उसको भी पढ़वाया जा सकता है, ऐसा एक्सप्रेसली TPA एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये एक प्रोविज़न आ गया यहाँ पर। एक तरह से हमने कस्टम और यूसेस को भी कंसेप्ट को समझे। ये एक अपने आप में एग्जॉस्टिव क्लॉज एक्ट नहीं है, तो इसमें इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो दूसरे जो पैरेलल एक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उनकी कंडीशंस इसके द्वारा जो इनके एक्ट्स हैं इनसे कोई उससे बाईपास नहीं होंगी और केवल पर्टिकुलर जो यूसेस हैं उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, जनरल यूसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। किन सेक्शंस में इसका प्रोविज़न दिया गया है, और इसके अलावा जैसे अपना इस बात के लिए आया कि दमदुपत इस तरह के जो यूसेज हैं, कस्टम्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लार्जली जितने भी नेटिव लॉज हैं वो सारे लॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या फिर और दूसरे जो इनैक्टमेंट्स हुए हैं उन्होंने टोटल सुपरसीड कर दिए हैं, अब उनका प्रिविलेंस नहीं है। अब इसके बाद में आता है कि व्हाट इज़ प्रॉपर लॉ इन केस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट।
फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि 2 या 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हों किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड भी इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है और सिंगापुर भी इन्वॉल्व है, अब किसी कॉन्ट्रैक्ट में 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तो किस कंट्री का लॉ असल में उसे गवर्न करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस लॉ को कहते हैं प्रॉपर लॉ। अब प्रॉपर लॉ के लिए कौन सी कंट्री गवर्न करेगी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया था एक एनटीपीसी वर्सेस सिंगर के मैटर में। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि प्रॉपर लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए किस कंट्री का एप्लीकेबल होगा, उसमें 2-3 चीज़ों को एग्जामिन करना होगा। पहली बात तो ये कि अगर उन कंट्रीज़ ने उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली बताया हुआ है कि इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा, तो उसमें कोई फिर क्वेश्चन नहीं रह जाता, इंडियन लॉ ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एप्लीकेबिलिटी के प्रॉपर लॉ को उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है एक्सप्रेसली, तो उस केस में कुछ बातों को, कुछ सर्कमस्टेंसेस को, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्जामिन करना होगा। और वो क्या चीज़ें एग्जामिन की जाएंगी, देखिए। अगर वो एक्सप्रेस बाय द पार्टीज़ कंसर्न है फिर तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन इफ़ नॉट देन बाय टर्म्स एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एज अंडर। कौन कौन सी हैं? द कंट्री वेयर आइदर द कोर्ट और एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वुड हैव जुडिक्शन ओवर क्लेम्स मेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लेम बनाए गए हैं वो कंट्री जिसका कि जुडिक्शन बनता है, चाहे आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल का बनता है चाहे कोर्ट्स का बनता है, तो जुडिक्शन को प्रूव करना पड़ेगा कि जुरिस्डिक्शन किस तरह से बन रहा है। कोई भी कोर्ट किसी भी मैटर को कब सुन सकती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस लेट डाउन है। उन कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री की बात उसमें फिट बैठती है कि वहाँ पर उस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है। अगर उसका जुडिक्शन बन जाता है तो वो पर्टिकुलर कंट्री का लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, प्रॉपर लॉ उस कंट्री का होगा। सेकेंडली, द कंट्री इन विच कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, यानी जिस कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। थर्ड, कंट्री वेयर पेमेंट वाज टू बी मेड, वो कंट्री जहाँ पर कि जो पेमेंट डिस्प्यूट में है वो की जानी है। अगर इंडिया का मान लीजिए सिंगापुर को से पेमेंट इंडिया में आनी है, तो इंडिया चूँकि प्लेस है जहाँ पर पैसे आने, तो फिर इंडिया में प्रॉपर लॉ जो है वो उस पर एप्लीकेबल होगा। और अगर सिंगापुर जाना है पैसा तो सिंगापुर का प्रॉपर लॉ यानी कि वहाँ का लॉ एप्लीकेबल होगा। देन द नेचर एंड लोकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन दी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है। मान लीजिए कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है किसी कंट्री में, अगर वो कंट्री लंदन इंग्लैंड है और लंदन में बनाना है, तो इसका मतलब है कि वो इस तरह का है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसका जो एग्जीक्यूशन होना है लंदन में हो रहा है, तो वो इस बात को अफेक्ट करेगा कि वहाँ का लॉ लगना चाहिए। देन द रेजिडेंस एंड ओकेजनली द नेशनलिटी ऑफ द पार्टीज़, नेशनलिटी ऑफ पार्टीज़ हो, रेजिडेंस हो, ये भी कई बार वहाँ पे कंसिडरेशन में लिया जाता है कि किस कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। अच्छा, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड बिफोर डिटर्मिनिंग द प्रॉपर लॉ इन सच केस, किस कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होगा, इसके लिए नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स को इसमें स्टडी किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, और उसके बाद ही बताया जा सकता है कि किस कंट्री का लॉ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होगा। इस तरह से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियल फेज़ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, और साथ में इसका स्कोप क्या है, हमने स्टडी कर लिया है। अब हम के बाकी टर्म्स के ऊपर आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि ऑफ़र क्या है, उसमें एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, प्रॉमिस क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।